Hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you are aware that on Saturday at 3 p.m. we discussed the Hindu analysis because Govind sir is not present on Saturday, so I take the class. So if I am audible and visible, please write in the comment section, yes sir you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार comment section में लिख दो, yes sir you're audible, so that we can start our session. Please write in the comment. Okay. So आज 5th अक्टूबर है. Today is 5th October and we will be discussing the Hindu analysis of 5th October. So let's start with today is Saturday, तो आज 5th October है. And on the first page, whatever was the important article, this was actually the most important article. So we will be discussing about this. तो आज फर्स्ट पेज पे द हिंदू अखबार की फर्स्ट पेज पे आर्टिकल थी एटलीस्ट 28 नक्सलाइट्स किल्ड इन छत्तीसगढ़ ऑपरेशंस. तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आई होप यू आर अवेयर नक्सलाइट्स या माओइस्ट कह लो, बोथ आर एक्चुअली सेम टर्म एंड द टर्म यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली LWE लिखते हैं उसको, LWE. Left-wing extremism. This is the official term used. Left-wing extremism. Generally, अखबार वाले नक्सलाइट्स या माओइस्ट लिखते हैं. So this term is used by the newspaper. I mean, like those who write newspaper or in the newspaper headline. So this is you should be knowing it. Now let's talk about this Chhattisgarh. First of all, let me show in the map. देखो, अगर आपने मैप देखा होगा तो ये वाला जो एरिया है, दिस रीजन, आई मीन आई एम मेकिंग अ रफ स्केच समथिंग. दिस रीजन रफली आई एम सेइंग is affected with of India is affected with Naxalite or Naxalism, or you can say Maoism. Okay, or officially I have told you this is called as LWE, left wing extremism. Okay, तो अगर आप देखोगे गौर से तो मतलब छत्तीसगढ़ का पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा है ना, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एज वेल. इनफैक्ट सम इम्पैक्ट इज देयर इन झारखंड एंड बंगाल आल्सो. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. खास कर जो छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा है, साउदर्न पोर्शन ऑफ छत्तीसगढ़, दिस इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. आई होप यू आर अवेयर. दिस इज छत्तीसगढ़ एंड द सदर्न रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इज दिस वन. तो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे आपको बस्तर मिलेगा यहीं पर. ठीक है, बस्तर इज अ वेरी क्वाइट फेमस रीजन, बस्तर. ठीक है, एंड इट ऑलवेज रिमेन्स इन द न्यूज रिगार्डिंग द नक्सल अटैक और माओइस्ट अटैक और माओइस्ट इंसर्जेंसी एंड ऑल. तो ये सब अक्सर न्यूज में रहता है. बस्तर रीजन, उसी के पास में दांतेवाड़ा है. दीज थिंग्स एक्चुअली रिमेन्स इन द न्यूज. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एन ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय पुलिस वेयर एक्चुअली 28 नक्सलाइट्स वर किल्ड. This is the second highest tally of Naxalites casualty in any operation in the state. Any second highest killings है. Casualties means number of deaths. तो अगर आप देख सकते हैं इसमें दिखा भी रहे हैं कि 10th अप्रैल को 12 माओइस्ट, देन 2nd अप्रैल को 13 माओइस्ट, 16th अप्रैल को 29 माओइस्ट were killed, then 3rd September 9 माओइस्ट were killed, and 4th October को 28 माओइस्ट killed in Bastar area, the second highest term in casualties. That is what is being talked about. So ये लिख रहे हैं at least 28 Naxalites were killed by security forces in gunfight in Chhattisgarh's Bastar region according to the police. One policeman was injured in a grenade blast during the operation. तो उस ऑपरेशन में एक पुलिसमैन को भी इंजरी हुई है ग्रेनेड फट जाने से. So that is what is being talked about here. The gunfight began around 1 p.m. in Bhujmand area of Narayanpur district in the left wing extremism Bastar region. तो बस्तर रीजन में एक जिला है नारायणपुर जिला, उसमें जो है गन फाइट मींस फायरिंग फ्रॉम बोथ द साइड, यू कैन से समथिंग लाइक दैट. Started in 1 p.m. and 8 p.m. the police provided the final number of bodies. So that is what the chief minister Mr. Vishnu Desai wrote actually post in X पर उन्होंने लिखा. X मतलब ट्विटर को अब X कहते हैं. I hope you are aware. So that is what he has written and all. And things like AK-47, self-load rifle and other weapons were actually found. ठीक है, तो ये सब वेपन्स भी मिला पुलिस को फ्रॉम नक्सलाइट्स एंड ऑल. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, तो इससे ज्यादा इतना डिटेल नहीं जाना, बट एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए. ठीक है, ओके.
Yes, I think it's clear. Now, फर्स्ट पेज में एक नीचे में आर्टिकल थी, एस जयशंकर टू विजिट पाकिस्तान फॉर एससीओज हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग. नाउ मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो एससीओ की जो मेन मीटिंग हुई थी इस साल. सो एससीओ समिट 2024 हैपेंड वेयर, इन विच कंट्री? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है. जो एससीओ समिट इस साल हुआ था जून जुलाई में आसपास में, एससीओ समिट 2024, है ना. तो जो 2024 में समिट हुआ था, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ क्लास. नहीं मानसी, नॉवेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स इंस्टेड ऑफ नॉवेल्स. ठीक है, इफ यू आर अटेम्प्टिंग नेक्स्ट ईयर क्लैट, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. ठीक है. हाँ हाँ, कजाकिस्तान, यस तानवी जैन, यू आर राइट. अस्ताना कजाकिस्तान में इस साल हुआ था जो मेन समिट हुई थी. ओके, दिस यू शुड बी नोइंग इट. तो इस बार एक हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है. ठीक है, उसमें एस जयशंकर साहब जाएंगे, बट मेन मीटिंग जो थी वो जून जुलाई में हुई थी, वही दैट वाज द मेन मीटिंग, है ना. सो दिस हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग विल बी हैपनिंग इन पाकिस्तान, जिसमें प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी गोइंग बट द फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर वुड बी गोइंग. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट. The Minister of External Affairs said Mr. S. Jaishankar's visit was mainly for the SCO's group meeting. Given India's focus on regional cooperation mechanism, no bilateral meetings on the sidelines have been decided thus far yet. यानी बायलैटरल मीटिंग्स नहीं होगी, यानी सिर्फ जो मल्टीलैटरल मीटिंग जो एससीओ समिट है उसके लिए जा रहे हैं. कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं होगा. बायलैटरल में दो कंट्री के बीच कोई समझौता नहीं होगा. मींस देयर विल नॉट बी एनी टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिस. S. Jaishankar, Foreign Minister of India, is going to Pakistan only for SCO summit or SCO meeting. Head of the government's meeting is there. तो इसलिए वो जाएंगे, और इसमें there will not be any bilateral talk. There will not be any talk between India and Pakistan there. ठीक है, that is what you should be knowing it. The last time Indian External Affairs Minister had traveled to Pakistan was in 2015 when Sushma Swaraj was the Foreign Minister. इनसे पहले इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज 2015 में गई थी, तो ऑलमोस्ट 9 साल हो गए. उस वक्त हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें गई थी. शी हैड गॉन देयर. सो फॉर द पास्ट 9 years वी हैव नॉट सीन एनी फॉरेन मिनिस्टर गोइंग टू पाकिस्तान. सो आफ्टर 9 years ही विल बी द फर्स्ट टू गो आफ्टर 9 years. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. एक चीज और याद रखना चाहिए कि सार्क समिट भी काफी दिनों से नहीं हुआ है. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना. तो ये 2016 में वी हैड एक्चुअली डिनाइड गोइंग because the reason was actually we have seen Uri attacks and all, and after that actually we have not gone there also. तो सार्क समिट भी बहुत दिनों से नहीं हुआ है. ठीक है, and that is what is also mentioned here. So I would give you homework. Please go and read about SARC. ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, how many, where is the secretariat, ये सब मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया भी है about it. ठीक है, so go and read about SARC in detail. Okay, yes. Now where is the headquarter of SCO? Can anyone tell me? Because मैंने इस क्लास में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कराया है. एंड हेडक्वार्टर ऑफ रैट्स, रैट्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैट्स एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? Beijing, China, Tashkent, Uzbekistan. Yes, Tanvi Jain, very good. You're right. The headquarter of SCO is in Beijing, which is actually the capital city of China. ठीक है, आपने सही जवाब दिया. You're right. And headquarter of RATS actually is in Uzbekistan, Tashkent. RATS मतलब regional anti-terror structure, है ना. This is actually under SCO. SCO के अंडर में आता है RATS, और इनका हेडक्वार्टर ताशकेंत उज्बेकिस्तान में, रैट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी का. और सेक्रेटेरिएट जो है एससीओ का सेक्रेटेरिएट बीजिंग चाइना में. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन. व्हिच इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन एससीओ? ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है. आई हैव ऑलरेडी टॉट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर. एंड टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितना, ये बताइए. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन एससीओ? Yes, Nandini, you are right. The latest one to join is Belarus, 2024. And yes, Tanvi Jain, you are also right. Total members are 10 now. ठीक है.
सो 8 थे, फिर 2023 में 9th ईरान वाज एडेड, एंड 2024 में बेलारूस वाज एडेड. यस मुकुल दागर, यू आर आल्सो राइट, वेरी गुड. सो दिस वी शुड बी नोइंग अबाउट इट. तो थोड़ा सा इसको एससीओ के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बिकॉज एससीओ अक्सर न्यूज में रहता है, ठीक है. तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज गो एंड वॉच इट अगर आपने नहीं देखा है. सो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट. ये वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस है. एससीओ अक्सर न्यूज में रहता है, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस. Now the next is first page में एक आर्टिकल था, सुप्रीम कोर्ट सेट अप न्यू एसआईटी विद सीबीआई ऑफिसर्स टू प्रोब नायडूज क्लेम ऑन तिरुपति लड्डू. एसआईटी मतलब क्या होता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम. 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है एक 5 मेंबर इन्वेस्टिगेशन टीम को टू बी सेट अप, वेयर 2 सीबीआई ऑफिसर्स विल आल्सो बी देयर, एंड दिस विल व्हाई, बिकॉज मतलब एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑलरेडी एसआईटी बनाई थी, लेकिन उसको रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं अलग से एसआईटी बना रहा हूं. दे हैव ऑर्डर टू मेक अ सेपरेट एसआईटी, 5 मेंबर एसआईटी वेयर देयर विल बी 2 सीबीआई ऑफिसर्स, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ था एक्चुअली, द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैड कमेंटेड ऑन दिस, एंड दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट हैप्पी कि इट शुड नॉट बी मेड एट अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, डू नॉट कीप गॉड आउट ऑफ पॉलिटिक्स. तो फिर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओके लेट्स सेट अप अ सेपरेट एसआईटी, एन इंडिपेंडेंट एसआईटी दैट आई विल बी फॉर्मिंग. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग फॉर्म करते हैं, एंड दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 2 सीबीआई ऑफिसर्स एज वेल, ठीक है. So we do not want any political drama and all. तो वो मतलब वही कहा था कि पॉलिटिक्स में नहीं कीजिए. आई होप यू आर अवेयर. आपको शायद पता होगा मेन इशू क्या था. इशू ये था कि मतलब कुछ दिन पहले, फ्यू डेज बैक, इट वाज इन न्यूज दैट एक्चुअली जो लड्डू बनता है तिरुपति में, एंड दे आर एक्चुअली, और लड्डू व्हाट यू कॉल इट एज स्वीट्स इन इंग्लिश, है ना, they are made actually where there is use of, the allegation was there is a use of animal fat etc, and that is why ये काफी न्यूज में आया था कुछ दिन पहले. So that is why there was a demand that there has to be a fair investigation into it, कि honest investigation होना चाहिए. तो इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, ठीक है. सो तिरुपति लड्डू, तिरुपति you will find it in the state of Andhra Pradesh. Now the Tirupati temple actually, what is the name of the temple? उस टेम्पल का नाम क्या है which you will find it in Tirupati? हाँ, adulteration का एलिगेशन था. यस तानवी जैन, यू आर राइट. हाँ, इट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स. कौन से हिल से मिलेगा आपको सिचुएटेड, मतलब या उसके पास में कौन सा हिल है. और दूसरा ये बताने कि उस टेम्पल का नाम क्या है. तिरुपति इज द प्लेस, जनरली लोग तिरुपति टेम्पल कहते थे, बट उसका एक नाम है, देयर इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट टेम्पल, and it is dedicated to which god? Dedicated to dash I'm writing, please tell me. ये सब मैंने बताया है ऑलरेडी, so I'm expecting you all. Yes Preetam, very good. Sesha Chalam Hills, C is the right answer to this question. ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश देख रहे हो, है ना, ये आंध्र प्रदेश है. यहाँ पर आपको शेषा चलाम हिल्स मिलेगा, चलाम हिल्स, ठीक है. उसी में वहीं पे आपको ये मिलेगा, लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल. यस अनामिका, यू आर राइट, वेरी गुड. यस तानवी जैन, यू आर आल्सो राइट, सी इज द राइट आंसर. श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल नाम है, ठीक है. इट इज डेडिकेटेड टू वेंकटेश्वर हु इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु. यही मैं पूछना चाह रहा था, ठीक है. इट डेडिकेटेड टू होम, है ना. सो लॉर्ड वेंकटेश्वर एंड इज फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है, ये याद रखिएगा. यस नंदिनी, यू आर राइट, वेरी गुड. एंड देखो इसी में विकिपीडिया में लिखा है तिरुमले पर आर पार्ट ऑफ शेषाचलम हिल रेंज. देखो मैं इसीलिए कहता हूं ना कि जब कोई भी चीज न्यूज में रहा कीजिए ना, तो उसका ना शुरू का 2-3 पैराग्राफ विकिपीडिया जरूर पढ़ लिया कीजिए, बिकॉज दे डू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है. सो प्लीज डू रीड इट. तो जैसे इट इज रन बाय टीटीडी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, ठीक है, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. ओके, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है. टेम्पल इज ऑल्सो नोन बाय तिरुमला टेम्पल, तिरुपति, तिरुपति बालाजी टेम्पल, ये सभी उसका नाम है, ठीक है, इस टेम्पल का, ठीक है. वेंकटेश्वर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवास. तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है. मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जैसे शेषाचलम हिल्स में, तो ये पढ़ लीजिएगा, है ना. एंड द हिल्स आर 853 मीटर अबव द सी, कंप्राइजिंग ऑफ 7 पीक्स एंड 7 हेड्स ऑफ आदि शेषा, है ना, ये पढ़ लीजिएगा, आदि शेषा. देन प्लीज रीड दिस.
तो टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहते हैं इस रीजन को. सो प्लीज डू रीड इट. जो भी चीज न्यूज में होता है उसका विकिपीडिया का शुरू का 2-3 पेज जरूर पढ़ लिया कीजिए, ठीक है. प्लीज डू रीड इट because there is highly likelihood that they'll be giving questions from here. Okay, now let's move on to the editorials. अगर editorials में जाएंगे, देखो लिखा है केरला urgently needs to identify risk zones. ठीक है. Yes, Mansi, you should start reading newspaper. आप daily newspaper first page और editorial पढ़ोगे, so that would be very very beneficial. Yes. ठीक है. और नेक्स्ट ईयर के लिए विल बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन द सेम यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दैट आल्सो. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल केरला अर्जेंटली नीड्स टू आइडेंटिफाई रिस्क जोन्स. तो एक्चुअली क्या चीज की बात कर रहे हैं, किस रिस्क जोन, मतलब एक्चुअली डिजास्टर रिस्क की बात कर रहे हैं. तो अगर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली वी हैव सीन डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स, है ना, आपने देखा होगा खास के जो वायनाड काफी न्यूज में था. वी हैव सीन लैंडस्लाइड्स इन वायनाड इन केरला. तो वो ये बता ये रहे हैं कि रिस्क जोन्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि कहां पर, मतलब देयर इज अ हाईली लाइक्लीहुड दैट देयर इज लैंडस्लाइड्स और ऑल. तो जो रिस्क प्रोन एरियाज है उसको हाईलाइट करके रिस्क प्रोन एरियाज को हाईलाइट करना है, ठीक है. और उसी हिसाब से फिर मतलब इको टूरिज्म प्रमोट करना है, सो दैट ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ जाए, फॉर दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. So that is what you should be knowing about it. So that is what देखो इन दोनों जो लिखा है, they are talking about Wayanad district landslides, है ना, which we have seen and all recently. तो इसी पर वो they are talking about it. ठीक है. So let me show. This is the state of Kerala, है ना, और यहाँ पर को वायनाड मिलेगा. Now there is one question actually. ठीक है. The question is कि ये वाला जो ना, ये वेस्टर्न घाट है ये पूरा. सो वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी. अ कमेटी वाज सेट अप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमेटी? एक्चुअली 2 कमेटी बनाई गई है टिल नाउ. प्लीज टेल मी बिकॉज वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिर से बताएंगे. ठीक है. सो ये सब उन्होंने डिस्कस किया, वेस्टर्न घाट एंड ऑल, बिकॉज केरला में हम लोगों ने 2018 में भी फ्लड्स देखा था. ठीक है. उस टाइम पर भी काफी न्यूज में था केरला फ्लड्स. एट दैट टाइम आल्सो इट वाज वेरी मच इन द न्यूज. कैन एनीवन टेल मी नेम द 2 committees that were formed for the protection of western ghats? We have already discussed it in the past. इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताइएगा. Yes, Deeptakshi, you're right. One answer आपने सही बताया है, Gadgil committee. What was the other one? The 2 committees. One is Gadgil. Yes, Kasturi Ranjan. Very good. Tanvi Jan, Kasturi Ranjan. ठीक है. इनफैक्ट माधव गैडगिल साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखा था व्हेन आफ्टर द केरला लैंडस्लाइड्स एंड ऑल वायनाड लैंडस्लाइड्स. ये पता होना चाहिए. गैडगिल कमेटी 2010 में सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, एंड इट डेजिग्नेटेड 64% ऑफ वेस्टर्न घाट एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. कस्तूरी रंजन कमेटी 2012 में बनाई गई थी. और ये दोनों काफी ज्यादा न्यूज में रहता है. इफ यू रीड एडिटोरियल्स, खास की जब वायनाड लैंडस्लाइड्स के बाद अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज 2 नेम्स इन द न्यूज़पेपर, आई एम श्योर. ठीक है. तो ये पता होना चाहिए. हाई लेवल कमेटी, राइट, दीप्ताक्षी नंदरी. वेरी गुड. हाँ. नाउ तो ठीक है. तो इसी के बारे में दे हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. जैसे वेमनाड लेक है, यू विल फाइंड इट इन केरला. ठीक है. गेट्स इनंडेटेड ड्यूरिंग एवरी मॉनसून, यानी फ्लडेड हो जाता है मॉनसून में. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग एक्चुअली अबाउट. ठीक है. Now, साइड में एक आर्टिकल थी, एडिटोरियल था, टॉकिंग अबाउट कास्ट इन जेल, टाइम फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट टू एंड सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन. तो स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जेल जो है ना, या प्रिजन जो है, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है. ठीक है. So that is what they are saying. The most notable aspect of Supreme Court ruling prohibiting caste-based discrimination, the treatment of prisoners, is that it required a judgment from the highest court to end colonial practice and systems in prison. मतलब ये कहा जा रहा है कि इवन जेल के अंदर जो है
वो ऐसा कहा जा रहा है कि परहैप्स वो जगह कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था जेल प्रिजन के अंदर। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग पास करना पड़ा ये क्लैरिफाई करने के लिए कि देयर शुड नॉट बी एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इनसाइड द जेल। Okay, so that is what while the court has dealt elaborately with specific rules in demand in the jail manuals for various states, uh, plays a role in allocation of duties, classification of prisoners, and treatment of certain social group as habitual offenders. मतलब होता क्या है कि सर्टेन सोशल ग्रुप मान लीजिए बेसिफिकली जो अगर कमजोर वर्ग से आते हैं दोज हु आर फ्रॉम द लोअर और वीकर कास्ट they are sometimes categorized as habitual offenders, they are not treated well. So even we have seen that there is a caste-based discrimination even inside the jail. So specifically the ones who are actually the weakers, poor from the financially weak background or from the lower caste, they suffer this and all. And a prohibition of untouchability. Achha, which article clearly says abolition of untouchability? कहाँ mention है? It is actually a part of fundamental right. Under which article? यहाँ लिखे ना prohibition of untouchability. Which article talks about it? Responding to journalist Sukanya Shanta's writ petition, the court has analyzed controversial rules and practices in jail. Yes, Article 17. Yes, Tanvi Jal. Very good. Article 17 talks about it. Yes, Deep Takshi, you are also right. Article 17 talks about abolition of untouchability. ठीक है, तो किसी जर्नलिस्ट ने पेटिशन फाइल किया था, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ओके, है ना. Distribution favor cannot be solely on the birth and all. तो ठीक है, वही सब बता रहे हैं. That is what the author is talking about. कि there should be end to discrimination on the basis of caste and all. Even inside the jail we have seen this. ये सब नहीं होना चाहिए and all. ठीक है. Okay, now let's move on. नीचे में आर्टिकल थी in Gaza it is a battle for survival. So we have already discussed Gaza and these things a lot, है ना. So here is India, this is Israel. यहाँ पे आप देख सकते हो. This one is West Bank. ये मैंने कई बार बताया. This one is Gaza. This one is West Bank. So we have seen this actually the war and all, where Gaza became victim. I think thousands of people died in Gaza, and now currently in Lebanon, here is Lebanon, where actually the fight is happening, Hezbollah and Israel and all. I hope you are aware of these things. तो ये सब न्यूज में. ठीक है, फिर मैंने और कुछ चीजें इससे रिलेटेड बताई थी, जैसे बताया था कि ये मेडिटेरेनियन सी है ना. दिस इज मेडिटेरेनियन सी. देन दिस वन इज, ये कौन सी जगह है, वाटर बॉडी, ये कौन सा है, ये मैंने बताया था. दिस इज डेड सी. ये वाला कौन सा, सी ऑफ गैलीली, है ना. दिस आई डिस्कस्ड. फिर मैंने आपको एक दो चीज और बताई थी कि ये वाला जो है ना रेड सी है ना. तो रेड सी जो है दो वाटर बॉडी में स्प्लिट होता है. यहाँ पर ये पेनिनसुला कौन सा बनता है, व्हाट इज दिस पेनिनसुला कॉल्ड. जो ये वाला है, ये अक्सर न्यूज में रहता है. दिस पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, व्हाट इज दैट कॉल्ड, एनीवन. Anyone, what is this peninsula called? Sinai Peninsula. Not Arabian Peninsula. देखो ये वाला अरबियन पेनिनसुला है. दिस इज अरबियन पेनिनसुला, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला. यस, प्रीतम एंड तानवी, यू बोथ आर राइट. मैं ये वाला पूछा था जो इजिप्ट में, ये वाला इजराइल के बगल में. दिस इज कॉल्ड एज सीनाई पेनिनसुला. ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है, तो ये सब न्यूज में अक्सर रहता है, तो आपको पता होना चाहिए. देन इस आर्टिकल में द ऑथर वाज टॉकिंग अबाउट वन थिंग व्हिच आई थिंक आई शुड डिस्कस. ये मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहते हैं. सो दिस इज एन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड इन विच कंट्री. इनका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए तो. बिकॉज व्हाट दे डू इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, विच एक्चुअली परफॉर्म, मतलब इट इज हेल्पफुल, मतलब वो अपने डॉक्टर्स भेजती है फॉर एड एंड ऑल, है ना. लाइक, है ना,
So basically it is headquartered in Geneva, Switzerland. ठीक है, yes, and they are doing this है ना, so they provide doctors, medical help, aid to people who are victim of, let's say, diabetes, drug resistance, HIV, hepatitis, etc. and all. ठीक है, yes, headquarter इनका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड. हाँ, yes, Deep Takshi, no problem, it's Sinai Peninsula. Yes, yes, you are right, जेनेवा, स्विट्जरलैंड. Yes, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जस्ट रीड लिटिल बिट अबाउट दिस. फाउंड हुआ था पेरिस में, बट मेन अभी हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. नाउ लेट्स मूव ऑन द अदर मानसून. तो साइड में एक आर्टिकल से इट इज टॉकिंग अबाउट मानसून एंड ऑल. ठीक है, सो इंडिया साउथ वेस्ट मानसून हैज एंडेड एन ऑप्टिमिस्टिक नोट विद 8% मोर एंड ऑल. तो बोले जो बता ये रहे हैं कि जो इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून समझ गए ना, जैसे ये मानसून है, ये साउथ इंडिया है, तो इंडिया का मानसून ऐसे आता है ना, साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन से. ठीक है, ओके, विद 8% मोर रेन देन एंटिसिपेटेड. ठीक है, तो वो जितना रेन होना चाहिए तो उससे थोड़ा सा 8% ज्यादा ही वो ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव था. ठीक है, monsoon clouds continue to prevail over the country given the forecasts and all following the withdrawal of the southwest monsoon in mid-October. The north east monsoon is characterized by reversal of winds and all. अब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, स्पेशली ठंडी में आता है ये. ठीक है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब समथिंग कुछ ऐसा, जैसे अगर एक तो साउथ वेस्ट मानसून आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास, और रिवर्स सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून ऐसे आता है ना. आई होप यू आर अवेयर, ये रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं. दिस हैपेंस अराउंड दिसंबर एंड जनवरी, है ना, दिसंबर. इसीलिए आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में द रेनफॉल हैपेंस इन दिसंबर बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से. ठीक है, तो ये सब बात करें कि लेट्स सी व्हाट विल हैपन दैट. नाउ अब ये एल नीनो और ला नीना की बात कर रहे हैं. Now first please tell me, La Nina and El Nino they are talking about, कि this phenomena of El Nino and La Nina happens in which place? Atlantic, Pacific, Indian, Arabian Sea. हाँ, आंध्र प्रदेश में भी नॉर्थ ईस्ट मानसून या जो रिट्रीटिंग मानसून का इम्पैक्ट होता है. यस यस तानवी जान, यू आर राइट. हाँ, एल नीनो एंड ला नीना आर फेनोमेना दैट हैपेंस वेयर, और इसका इंडियन मानसून पे कैसा इंपैक्ट होता है. सो एल नीनो इंपैक्ट्स पॉजिटिवली ऑन साउथ वेस्ट मानसून और नेगेटिवली. La Nina impacts southwest monsoon positively or negatively. हाँ, पैसिफिक ओशन में, यस नंदनी, दीप्ताक्षी, प्रीतम, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर. तो यहां पर होता है साउथ पैसिफिक ओशन में, यहां पर फेनोमेना होता है. जैसे ये पूरा पैसिफिक ओशन है ना, तो साउथ पैसिफिक में यू विल फाइंड एल नीनो एंड ला नीना. ठीक है, ओके. एल लीनो नेगेटिवली, यस वेरी गुड. तो अगर एल लीनो आ रहा है तो इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून जो है वीक हो जाता है. ठीक है, यस दीप्ताक्षी, वेरी गुड. हाँ, यस नंदिनी, यू आर आल्सो राइट. अगर ला नीना आएगा तो मैं ब्लू से बनाता हूं, जैसे अगर ला नीना आ रहा है तो साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रांग हो जाएगा. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है, ओके. नाउ एक अंदर वर्ल्ड पेज में एक आर्टिकल था, पीएम मोदी सेज कॉन्फ्लिक्ट हिट रीजन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी. ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, व्हाट वी आर टॉकिंग, एनर्जी किससे किससे मिलता है ना, पेट्रोल, डीजल, है ना, मतलब ऑयल से यहां पर ही इज टॉकिंग एक्चुअली प्राइमरीली अबाउट, है ना, या नेचुरल गैस, ये ना पेट्रोलियम, नेचुरल गैस प्रोडक्ट एंड ऑल. तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली देखो अब दो चीज है, कॉन्फ्लिक्ट हिट कौन सा, एक रशिया यूक्रेन की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें. सो रशिया यूक्रेन वॉर एक्चुअली इज हैपनिंग, तो रशिया से वी कैन गेट नेचुरल गैस, है ना. प्लस करेंटली आपने देखा होगा ईरान एंड लाइक इजराइल एंड ऑल कॉन्फ्लिक्ट वी आर सीइंग. सो ईरान से वी गेट नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो, है ना, जैसे नेचुरल गैस, ऑयल्स एंड ऑल वी गेट. ठीक है, दैट इज व्हाट वी शुड बी नोइंग. तो ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन है, जहां एक्चुअली जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट ही सेड, दैट यस बिकॉज अगर कुछ मतलब इंस्टेबिलिटी आती है, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी, देन इट विल इम्पैक्ट एक्चुअली द oils, or maybe oil prices will increase, something like that. हो सकता है oil price बढ़ जाए या something,
So let's see, है ना. So that is what he has talked about. He was speaking at Cortelia Economic Conclave. तो Cortelia Economic Conclave पे वो बोल रहे थे, उसमें उन्होंने कहा, ठीक है. So that is what he said. और इंडिया इज मोर देन 85% डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल. यस, ये पता होना चाहिए कि लगभग 85% से ज्यादा जो इंडिया का जो डिमांड है वो इंपोर्ट से फुलफिल होता है, बिकॉज वी हैव वेरी लेस सोर्स इन आवर ओन कंट्री. बहुत कम ही जो है क्रूड ऑयल, मतलब उतना ज्यादा इंडिया में नहीं है जमीन के अंदर. वी डोंट हैव मच क्रूड ऑयल रिजर्व्स एंड ऑल, ठीक है. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. Okay, Mr. S. Jaishankar meets Dissanayake. He's the new actually president of Sri Lanka. Pledges support for economic recovery. तो आपने देखा होगा. So External Affairs Minister Mr. S. Jaishankar met Sri Lanka's newly elected president Anura Kumara Dissanayake in Colombo and offered full support for economic growth. क्यों economic recovery? Actually क्या हुआ था आपने पता होगा, 2 साल पहले we had seen Sri Lanka's forex crisis, foreign exchange crisis हुआ था, है ना. You must have seen it. Where actually उससे हुआ ये था कि people started protesting. In fact, president को भाग जाना पड़ा था. We must have seen, अपने 2 साल पहले देखा होगा. So that is why now it is very important that Sri Lanka should recover and all. So that is why foreign minister has gone there and he said that yes, we'll be providing each and every support for the recovery and all, ठीक है, of Sri Lanka's economy, ठीक है. That is what you should be knowing. Now, who is the new Air Force chief? बताइए तो. मैंने पेड सेशन में बताया भी है. Now, who is the new Air Force chief? Important because recently it has been changed. I think few days or few weeks back. Yes, the right answer is Air Marshal Amarpreet Singh. ठीक है. Yes, I have got the right answer. Tanvi Jain, Nandini and Preetam. You all right, है ना. Earlier, Mr. Vivek Ram Chaudhary was the Indian Air Force chief. Now we are having Air Marshal Amarpreet Singh. ठीक है. तो इन्होंने कुछ कहा, पेज नंबर 14 में छपा भी था. नीड टू कैच अप विद चाइना ऑन टेक्नोलॉजी, सेज चीफ ऑफ एयर फोर्स, है ना. कैच अप विद टेक्नोलॉजी मतलब बिकॉज चाइना's टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज वेरी फास्ट, सो वी हैव टू एक्चुअली मैच विद दैट, है ना. तो हम लोग को भी उतना फास्ट डेवलप करना चाहिए. दैट इज व्हाट ही हैड सेड. इनका नाम याद रखिएगा बिकॉज रीसेंट चेंज हैव हैपेंड. यस, मुकुल, दीप, ताक्षी, प्रीतम, नंदनी, यू ऑल वे राइट. गुड. WHO gives approval to first mpox diagnostic test. इसका नाम क्या है? देखो, mpox जो आपको पता होगा, monkeypox is very much in the news. It has been declared as public health emergency of international concern and all, ठीक है. तो ये इसका नाम है, इसको याद कर लीजिएगा. Alinity MPXVSE, ठीक है. Manufactured by Abbott Molecular, ठीक है. So please remember it. और एमपॉक्स जो है अभी रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे ज्यादा फैले हुआ है ना, अफ्रीका से. दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ वायरस, इट इज अ जूनोटिक डिजीज. जूनोटिक का मतलब होता है डिजीज व्हिच कैन एक्चुअली मूव्स ट्रांसफॉर्म, कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए, मंकी पॉक्स एंड ऑल. फिर पेज नंबर 16 वर्ल्ड पेज में एक आर्टिकल था, खामनी इन रेयर सरमन वोस टू कीप फाइटिंग इजराइल. तो आई होप यू आर अवेयर. देखो एक्चुअली होता क्या है कि ईरान में जो है ना, इट्स अ मिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड थियोक्रेसी. तो ईरान में प्रेसिडेंट भी होते हैं, जैसे वी आर हैविंग दिस एज अ प्रेसिडेंट, है ना, मसूद पेजेश्कियान, एंड ही वाज रिसेंटली अपॉइंटेड बिकॉज बिफोर हिम इब्राहिम रियासी वाज द प्रेसिडेंट हु डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश. तो अभी रिसेंटली, आई थिंक few months back he became the president. तो एक प्रेसिडेंट होते हैं और एक सुप्रीम लीडर होते हैं, Ayatollah Ali Khamenei, ठीक है. So he is the supreme leader. So when he gave the speech, he was having AK-47 in his hand and he gave a Friday sermon. तो फर्स्ट टाइम पिछले 4-5 साल में पहली बार उन्होंने फ्राइडे में sermon दिया, स्पीच दिया. So that is what, है ना, you should be knowing about it. तो and he was actually talking about this, है ना. तो that is you should know, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए कि ईरान में जो सेटअप है वो इस तरह है. प्रेसिडेंट इज देयर एंड सुप्रीम लीडर इज देयर, व्हिच इज एक्चुअली अ रिलीजियस लीडर आल्सो. श्रेया सिंह, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. जो आपका क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं.
I have made a separate video. जैसे आप YouTube पे जाना, सर्च करना all important environmental summits in one class. Environmental summits in one class. And write career launcher law entrance. ऐसे आप YouTube पे सर्च करोगे, you will get a video. ग्रीन कलर का थंबनेल होगा. ओके, सो गो एंड वॉच दैट. ईरान इजराइल पर आई विल ट्राई माई बेस्ट. नेक्स्ट वीक शायद नहीं हो पाए, बिकॉज विल बी हैविंग अदर इंपॉर्टेंट क्लासेस. उसके बाद मैं कहीं पे टाइम निकाल करके किसी न किसी दिन मैं अरेंज करूंगा कोई क्लास. ठीक है, ठीक है. इज इट क्लियर श्रेया? ऑल इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल समिट्स इन वन क्लास आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस ऐसे सर्च मारोगे, या इसी चैनल पे नीचे जाना ना, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, ग्रीन कलर का बॉटल ग्रीन कलर का थंबनेल पे लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है, सो ये वाली क्लास जरूर देख लेना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर. इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स एंड यूनेस्को साइट्स. नंदनी, जीआई टैग्स में देखता हूँ यूनेस्को पर एक ऑलरेडी क्लास डाला हुआ है, मेरा नहीं लिया हुआ है, बट इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द सेम यूट्यूब चैनल. ठीक है, सो गो एंड वॉच दैट. जीआई टैग पे मैं देखता हूँ, मैं अपने नोट्स पे लिख लेता हूँ. इफ आई गेट अ टाइम आई विल ट्राई टू अरेंज द क्लास फॉर दैट. ठीक है, so this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.